وہ یہ قیمتی زندگی ہے، اس کو قیمتی بنا لیں، یہ دوبارہ نہیں ملنی۔ کیسے؟ اللہ کو راضی کرے، اعمال، ترتیب زندگی ٹھیک کرے۔ رات کو جلدی سونا ہے، صبح کو جلدی اٹھنا ہے، نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ اشراق سے پہلے جو سو جاتے ہیں نا، یا جو اٹھتے ہی نہیں ہیں، یا جو فجر پڑھتے ہی سو جاتے ہیں، یہ برکتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ابھی، ان میں سے اکثریت وہ ہے جو فجر میں نہیں ہوتی مسجد میں، ان کا بیٹا نہیں ہوتا ہے، ان کا داماد نہیں ہوتا ہے، اس نے انہوں نے رشتہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، انہوں نے دیکھا کہ یہ پیسہ کتنا کماتا ہے۔ یہ بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں کہ کس کو پیسہ کون زیادہ کماتا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے تقوی والا کون ہے، ایمان والا کون ہے، اعمال والا کون ہے، حیا ہے کہ نہیں، اللہ کا خوف ہے کہ نہیں، اس میں انسانیت ہے کہ نہیں۔ معاشرہ بگڑا ہوا ہے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، معاشرہ کیسے سنورے گا؟ بھئی تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے گھر کو ٹھیک کرو، اپنے بولنے کو ٹھیک کرو، اپنے سننے کو ٹھیک کرو، اپنے دیکھنے کو ٹھیک کرو، اپنی کمائی کو ٹھیک کرو، اپنے خرچ کو ٹھیک کرو، اپنے گھر کے نظام کو ٹھیک کرو، معاشرہ سنورنا شروع ہو جائے گا۔ تو بھائی زندگی جا رہی، بھاگی جا رہی، بھاگی جا رہی۔ ہم جتنے بیٹھے ہوئے، ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ کہا جائے گا فوت ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اور سننے والا پتہ کیا کہے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فوراً پوچھے گا جنازہ کب ہے؟ جنازہ کب ہے؟ کہ جی زور میں ہے۔ اچھا، جنازہ پڑھا، وہ گئے۔ اکثر جنازہ پڑھ کے گھروں کو کچھ جو بہت قریبی ہیں دفنا کے، اور دفنا کے گھر میں آتے ہیں، اور پتہ کیا ہوتا ہے؟ روٹی لاؤ، بوٹی لاؤ، گرم گرم۔ 2 4 5 6 دن تذکرے ختم۔ تو میرے بھائیو، اپنی زندگی کی ترتیب ٹھیک کریں، ترتیب زندگی ٹھیک کریں۔ گھر جائیں، سب گھر والوں سے طے کروائیں کہ دیکھو بھئی اپنی زندگی کی ترتیب ٹھیک کرو، نظام الاوقات بنائیں، سب اپنا نظام الاوقات بنائیں، گھر والوں سے نظام الاوقات بنوائیں۔ کاپی پینسل لو، ہر بچے کے ہاتھ میں کاغذ قلم دو کہ بیٹا لکھو کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، نماز کی ترتیب بناؤ، قرآن کتنا پڑھنا ہے، روزانہ تسبیح کرنی ہے، سیر کرنی ہے، اتنے وقت سیر کرو، جم جانا ہے جاؤ، یہ وقت ہے جم کا تمہارا، کھیلنا ہے کھیلو، یہ وقت ہے کھیلنے کا، یہ وقت ہے تمہارا دکان دفتر کاروبار کا، اتنا وقت تمہیں مسجد کو دینا ہے، اتنا وقت تمہیں قرآن کو دینا ہے۔ سب سے طے کرواؤ۔ یہ کیا سو رہے ہیں تو سو رہے، بیٹھے ہیں تو بیٹھے، باتیں تو باتیں، سیاست ہے تو سیاست ہے، حالت حضرت تو حالت حضرت پہ چل پڑے۔ مجھے پرسوں فون آیا کہ عید والے دن کہتا میں نے ملنا ہے آپ سے۔ میں نے کہا جی بات کرو، کیا بات کرنی ہے؟ کہنے جی میں نے ملنا ہے۔ میں نے کہا کام کیا ہے؟ کہ جی ویسی گپ شپ مارنی ہے۔ گپ شپ مارنی ہے؟ وہ اتنا ویلا گپ شپ مارنی ہے؟ وہ مسلمان کے پاس کہاں وقت ہے گپ شپ مارنے کا؟ کہتے ہیں بیٹھو یار، کوئی وقت بیٹھ کے وقت پاس کرے۔ وہ یہ بڑی قیمتی زندگی ہے اور نہیں ملنی دوبارہ، اور جا رہی ہے۔ ایک ایک دن قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اس کو قیمتی بنا لیں۔ یہ گنے کا رس بیچتا ہے نا، گنے کو ڈالتا ہے بیچ میں مشین کے، پھر چھلکے کو دورہ کر کے بھی ڈال دیتا ہے، چورا کر کے بھی ڈال دیتا ہے، اس کو نچوڑتا ہے اچھی طرح۔ اس طرح اس زندگی کو قیمتی بنا لیں۔ عجیب بات ہے، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے نا، بڑی عجیب بات ہے،
बहुत ही अजीब बात है। अगर समझ में आ जाए, ना समझ में आए तो कुछ भी नहीं है। वो दफनाने के बाद ना कब्रिस्तान में किसी ने पूछा कि जिसको हमने अभी दफनाया है, अगर इसको दुनिया में वापस भेज दिया जाए तो ये क्या करेगा? नमाज छोड़ेगा कि पढ़ेगा? कि पढ़ेगा। वक्त कैसे गुजारेगा? कि बड़ा सही। कोई गलत काम करेगा कि नहीं, सच बोलेगा कि झूठ नहीं, कि सच बोलेगा। गाना सुनेगा कि कुरान के नहीं, गाना कुरान सुनेगा, गाना कभी नहीं सुनेगा। कि उन्होंने कहा देखो जिसको दफनाया है ना, इसने तो वापस आना कोई नहीं। हम अभी मौजूद हैं, हम तो वक्त को कीमती बना दें, हम तो तरतीब जिंदगी ठीक कर लेंगे। हमने भी मर जाना है एक दिन, और जब हमने मर जाना है फिर वापस हमने भी कोई नहीं आना। ओहो, ये बहुत ऊंची बात और गहरी बात है, अगर किसी की समझ में आए। ये जितने भी आते हैं ना, ये बयान सुनने नहीं आते। बहुत कम लोग हैं जो बयान सुनने आते हैं। वो तो जुम्मा पढ़ने आए, इसलिए 1 बज गया, अब घड़ियों की तरफ नजरें उठेंगी। वो बात को समझें, बात को समझें। एक आया मेरे पास कि कोई वजीफा बताओ, बड़ी परेशानी है। मैं कहा तुम फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ते हो? क्या नहीं, फजर में तो नहीं उठा जाता। वजीफा बताओ? जाहिल कहीं का। नमाज मस्जिद में पढ़ो, ये वजीफा है सबसे बड़ा। नहीं तो कोई वजीफा बताओ। मैं कहा अच्छा रोजाना कुरान पढ़ते हो तुम? क्या नहीं जी, कुरान पढ़ने का तो वक्त नहीं मिलता। और ये कुरान वजीफा है। देखो भूख लग रही तो आदमी खाना खाता है कि वजीफा पूछता है? गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी ठीक करवाते हैं कि वजीफा पूछता है? मशीन खराब हो गई आपकी फैक्ट्री में तो आप वजीफा पूछते हो कि वजीफा बताओ? मुझे बहुत से लोग आते हैं, अब मौलवी साहब ये जरा फूंक मार देना। मैं कहा मैं तो लोगों की फूंक निकालता हूं। हम तो लोगों की फूंक निकाल रहे हैं, फूंक तो भरी पड़ी है लोगों में। ये फूंक मारने का काम नहीं है, ये दम और वजीफों का काम नहीं है। मैं पिछले एक जगह गया हुआ था, मैं नाम नहीं लेता। वो जिसे देखो बोतल लेके आ रहा है, मौलवी साहब दम कर दो, अब मौलवी साहब फूंक मार दो है। और मैं कहा भाई तबलीग में पीर परस्ती कोई नहीं है, ये फूंक फूंक वाला काम नहीं है। जिंदगी की तरतीब ठीक करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, रात को जल्दी सो, सुबह को जल्दी उठो, रोजाना कुरान पढ़ो। चलो आधा सिपारा, चलो पाव सिपारा, चलो 2 रुकू, तस्बीह करो, तस्बीह करो, हाथ में तस्बीह हो, जेब में तस्बीह हो, सुबह शाम की दुआएं मां पढ़ो, गुनाहों से बचो, बोलने को ठीक करो, देखने को ठीक करो, सुनने को ठीक करो, कमाई को ठीक करो, खर्च को ठीक करो। एक सहाबी कैद हो गए, एक सहाबी कैद हो गए, काफिरों की कैद, बेड़ियों में जकड़े गए। उनके वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि हुजूर मेरा बेटा कैद हो गया है। अल्लाह के नबी ने 2 बातें फरमाई, 2 बातें। पहली बात फरमाई उससे कहो तकवा इख्तियार करे, उससे कहो तकवा इख्तियार करे। और दूसरी बात फरमाई उससे कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कसरत से पढ़ा करे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कसरत से पढ़ा करे। वजीफा बाद में बताया पढ़ने वाला, अमल पहले बताया। तकवा 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 किसे कहते हैं? गुनाहों से बचो, गलत ना बोलना, गलत ना देखना, गलत ना सुनना, कमाई गलत ना हो, खर्च गलत ना हो, लिबास ठीक करो, शक्ल ठीक करो, गुनाहों से बचो। अब वजीफा पढ़ो, इसमें जान होगी। गोली बंदूक में रख के मारो, शेर भी मरेगा, हाथ से मारो बिल्ली भी नहीं मरेगी। वजीफे में जान आती है, ताकत आती है। किससे? तकवे से। गुनाहों से बचो, अमली जिंदगी ठीक करो। तो भाइयों
बड़ी कीमती जिंदगी और जा रही है, नहीं मिलनी दोबारा। हाँ, एक एक दिन कीमती, एक एक मिनट कीमती, इसको कीमती बनाए कैसे? अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी, अमल का एहतमाम, रात को जल्दी सोएं, सुबह को जल्दी उठे, रोजाना 5 वक्त नमाज, घर का हर फर्द। जो नमाज नहीं पढ़ते, गफलत करते, कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते, ये परेशानियों को दावत दे रहे हैं, मुसीबतों को दावत दे रहे हैं, अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं, ये अल्लाह से टक्कर ले रहे हैं। अल्लाह ने जिस चीज को अहम कहा, ये कहते हैं अहम नहीं है। अल्लाह जिस चीज को जरूरी कह रहे हैं, ये कहते हैं कोई जरूरी नहीं है। अल्लाह जिस चीज का हुक्म दे रहे हैं, ये कहते हैं नहीं कोई जरूरी नहीं है। नमाज नमाज, जितने बैठे हुए ना, घर जाओ, अपने घर के सब बच्चों को, बच्चियों को, बहुओं को, सबको बिठाओ, सबसे तय करवाओ कि अपने निजामुल औकात बनाओ। भी सब निजामुल औकात बनाओ, कागज पे लिखो भाई, सब लिखो। सोना किस वक्त, उठना किस वक्त, नमाज किस वक्त, कुरान किस वक्त, कितना कुरान पढ़ना है, 1 सिपारा, आधा सिपारा, पाव सिपारा, घर का हर फर्द पढ़े। तस्बीह करनी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह फरमा रहा है, ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कितनी फिक्र है बच्चों की मुस्तकबिल की, बच्चियों की शादी की, जहेज की, जेवर की, उनका मकान बन जाए, कितनी फिक्र है। इन बच्चों बच्चियों की आखिरत की फिक्र करो, इनकी कब्र अच्छी हो, इनकी क़यामत अच्छी हो, ये दीन पर है। अल्लाह फरमा रहे अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम का ईंधन क्या है? इंसान है, इंसान, पत्थर, इंसान। इनको बचाओ, घर वालों को जहन्नम की आग से। इन्हें दीनदार बनाओ, इन्हें दीन सिखाओ। हर नमाज में बच्चों के लिए दुआ है, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती। क्या मांगा? ऐ अल्लाह मुझे क्या बना? नमाज कायम करने वाला बना। मुझे मालदार बना, मुझे बड़ा ताजिर बना नहीं, अल्लाह मुझे क्या बना? नमाज कायम करने वाला। और किसे? वो मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे। नमाज कायम करने का मतलब क्या होता है? टरखाने वाली नमाज ना हो, दिल लगा के नमाज पढ़ने वाले हों। एक टरखाने वाली नमाज, एंड टाइम पे और भागे, और सारी नमाज में पता नहीं दिमाग कहां घूम रहा है। दिल लगा के नमाज पढ़ो, मुस्तहबात की रियायत करते हुए, आदाब की रियायत करते हुए, अरकान की रियायत करते हुए, वाजिबात की रियायत करते हुए नमाज को दिल लगा के पढ़ो। अकीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो, अल्लाह की याद में डूब के नमाज पढ़ो। क्या खूबसूरत तर्जुमा किया है इसका। अकीमिस्सलात लिज़िक्री, अल्लाह की याद में डूब के नमाज पढ़ो, अल्लाह की मोहब्बत से नमाज पढ़ो। अल्लाह की मोहब्बत से नमाज होगी ना तो रुकू सजदे की तस्बीह लंबी होनी शुरू हो जाएगी। उसके रुकू सजदे की तस्बीह कभी 9, कभी 11, कभी 13, कभी 21। आप सब अपने आप से पूछो, पूरे साल में कोई सजदा आपका 9 तस्बीह तक गया? पूरे साल में कोई सजदा आपका 21 तस्बीह तक गया? चलो पूरे साल में कोई सजदा आपका 9 तस्बीह तक, 7 तस्बीह तक गया? अभी तो 3 तस्बीह पे अड़े हुए, 3 तस्बीह पे अड़े हुए। मेरे भाइयों, एक गुजारिश है आज सबसे, अपना निजामुल औकात बनाए, अपना निजामुल औकात बनाए, घर वालों से अपना निजामुल औकात बनवाए। रात को जल्दी सोना है, सुबह को जल्दी उठना है, 5 वक्त नमाज, घर का कोई फर्द बेनमाजी ना हो। फजर में मस्जिद भरी हो, फजर में मस्जिद जुम्मे के लिए नहीं है, मस्जिद 5 नमाजों के लिए, और 5 नमाजों में सबसे पहली नमाज फजर है। ये सब फजर में मस्जिद में हो, रोजाना कुरान पढ़ना है, सब तय करें अपना 1 सिपारा, आधा सिपारा, पाव सिपारा, जिक्र करना है,
دعا مانگنی ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ سے مانگیں, پریشانیوں سے اللہ بچائے گا, مصیبتوں سے اللہ بچائے گا.